योगः कर्मसु कौशलम्। As promised, today also I have come with a new resource person and new topic. જેમ તમને મેં પ્રોમિસ કર્યું છે એમ આજે પણ એક નવા રિસોર્સ પર્સન અને એક નવા વિષયને લઈને આપની સામે આવી રહ્યો છું. આજના રિસોર્સ પર્સન છે ડોક્ટર પ્રિયા અડવાણી. She is an accomplished career academician working in the field of teaching since last 15 years. છેલ્લા 15 વર્ષથી એકેડેમિક્સમાં કામ કરે છે. ડોક્ટર પ્રિયા અડવાણી is doctorate, એ PhD ની પદવી ધરાવે છે. And she has written numerous papers for national and international forums and journals and is author of few books. Dr. Advani is now involved in penning books and trying to make a difference where she thinks her talent could be used for betterment of academia. Priya Advani got a Best Paper Award in international conference and she is working as an editor for few journals. List is very long. આ યાદી બહુ લાંબી છે. જો એમની અચીવમેન્ટ્સ વિશે જ વાત કરવા બેસું તો કદાચ આજનું સેશન એના વિશે જ પૂરું થઈ જાય. I welcome Dr. Priya Advani to this platform to deliver her session. એમના સેશન માટે હું ડોક્ટર પ્રિયા અડવાણીને આ પ્લેટફોર્મ પર ઇન્વાઇટ કરું છું. મિત્રો, તો now it's between you and Dr. Advani. Thank you, sir. I'm honored with your kind words. Hello all. Before starting the session, I like to pay my gratitude. I, Dr. Priya Advani, thanks UGC Human Resource Development Center of Gujarat University for giving me an opportunity to connect with you and deliver my session on fundamentals of research. I thank Professor Jagdish Joshi sir, the professor and director of UGC HRDC of Gujarat University. Sir has been very consistent even in this critical phase of COVID-19 to execute numerous courses for educators to develop their level of pedagogies. Thank you, sir, for providing online platform for all of us to learn in the safe zone. Friends, I like to throw some light on HRDC Gujarat University. HRDC Gujarat University is ranked as 15 in India and number 1 in Gujarat. It's the pioneer and created history by organizing so many courses. Let me list few of them. The first of its kind online annual refresher program in English language teaching, ARPIT, with a record break of 9,000 participants in year 2019-20. The first ever online short-term course on e-content development during the lockdown. More than 100 courses with about 4,000 participants have successfully completed, and I'm delighted to tell you that the participants were from across the country. The other achievement is the first online professional development program for the administrative staff of universities during lockdown with 105 participants. The response was overwhelming. The first of its kind PhD coursework in a blended mode that prefers mix of online and offline for all the registered PhD scholars of Gujarat University, PKNM University Junagadh, KSKV Kutch University, Bhuj is also under execution. UGC HRDC Gujarat University was funded by MHRD Gujarat under RUSA grant of rupees 3.33 crores. This is a privilege. It's one of the very few HRDCs which have very fruitfully and successfully organized the program under it. I'm glad to associate MHRD Gujarat University. योगः कर्मसु कौशलम. योगा कर्मसु कौशलम अर्थात आपके काम में निपुणता होना. आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें सक्षम होना, परिपूर्ण होना. फंडामेंटल्स आपको यही समझाते हैं कि आपको रिसर्च में परिपूर्णता कैसे मिलती है. रिसर्च फंडामेंटल समझने से पहले हम सबसे पहले रिसर्च समझेंगे. रिसर्च का हिंदी शब्द है अनुसंधान, पर मैं आज के सेशन में आप लोगों के कंफर्ट लेवल के लिए रिसर्च वर्ड ही यूज करूंगी. द सिस्टमैटिक रिगरस इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सिचुएशन और प्रॉब्लम in order to generate new knowledge or validate existing knowledge. ये डेफिनेशन ये समझाती है कि रिसर्च मतलब कुछ नया खोजना, एक नई जानकारी हासिल करना या जो पहले से जानकारी है उसे वैलिडेट करना,
उसे प्रूव करना, उसको अपडेट करना, यही रिसर्च है। अगर हम बात करते हैं रिसर्च फंडामेंटल्स की, रिसर्च एथिक्स की, तो खूब सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। इंटीग्रिटी, मॉरल प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी, राइट, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चॉइस, ऑनर, वैल्यू, खूब सारी चीजें। और ये सब चीजें मिलकर यही बोलती हैं कि ये सब एथिक्स हैं, ये सब एथिक्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। यही सब हम जानने वाले हैं आज कि रिसर्च एथिक्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं। लेट्स डिस्कस। Respect for the dignity of research participants should be prioritized. Research fundamentals हमें ये समझाते हैं कि रिसर्च में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिसर्च में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनकी डिग्निटी को हमें प्रायोरिटाइज करना होगा, उनकी डिग्निटी, उनके स्टैंडर्ड को, उनके लेवल को हमें प्रायोरिटाइज रखना होगा। Full consent should be obtained from the participants before study. अगर हम अपनी रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, किसी पार्टिसिपेंट का डेटा इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें उनका राजीनामा चाहिए होता है। हमें उनसे कंसेंट लेना होगा कि हम उनका डेटा यूज कर सकते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैज टू बी इंश्योर्ड। अगर हम किसी पार्टिसिपेंट का डेटा यूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि उनका जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, हम वो शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ। एडिक्वेट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिसर्च डेटा शुड बी इंश्योर्ड। जो चीज़ें एकदम कॉन्फिडेंशियल होती हैं, मान लीजिए किसी की सैलरी है, किसी के कुछ ऐसा डेटा है, इनकम रिलेटेड कुछ डेटा है या कुछ और, अगर वहाँ पे पार्टिसिपेंट चाहते हैं कि कुछ कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, तो हमें वो इंश्योर करना होगा वी आर नॉट सपोज टू लीक द डेटा। Anonymity of individuals and organizations participating in the research has to be ensured. आपके पार्टिसिपेंट्स, रिसर्च में जिन पार्टिसिपेंट्स को आपने इन्वॉल्व किया है, वो कहाँ काम करते हैं, वो क्या करते हैं, ये सब आपको कॉन्फिडेंशियल ही रखना होगा। हम लोग उन्हें उनका डेटा स्प्रेड नहीं कर सकते हैं, डिस्कस नहीं कर सकते हैं। That is against ethics. Any deception or exaggeration about the aims and objectives of the research must be avoided. आपको लगता है कि ये डेटा जो आपने रिसर्च के लिए गैदर किया है, जो लोगों से इंफॉर्मेशन हासिल की है, और उसकी आप जड़ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप और ज़्यादा उसकी इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं टू मच डिगिंग इनटू द इंफॉर्मेशन इज अगेंस्ट रिसर्च। वो रिसर्च के बिल्कुल ही खिलाफ है। आपको ये मान के चलना होगा कि हमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को लेकर ही अपनी रिसर्च रखनी है। Affiliations in any forms, sources of funding, as well as any possible conflicts of interest have to be declared. आपको अपनी रिसर्च में ये डिक्लेयर करना होगा कि आपकी रिसर्च में फंडिंग कहाँ से आ रही है, अफिलिएशंस कहाँ से हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं, कॉलेज से हैं, और कोई कन्फ्लिक्ट्स अगर आपको लग रहे हैं, आगे आ सकते हैं, तो वो पहले ही आप क्लियर कर दीजिए अपने रिसर्च से पहले ही, राइट। दैट इज अ वेरी डिसेंट स्टाइल और वर्क पैटर्न। आप इससे अपना काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। Any type of communication in relation to the research should be done with honesty and transparency. आप जो भी काम करने वाले हैं अपने रिसर्च में, जो भी आपको बातचीत करनी है अपने पार्टिसिपेंट से, ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। उतना ही होना चाहिए जो आप बोल रहे हैं वही सच होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए आपको अपने पार्टिसिपेंट्स की कम्युनिकेशन को लेकर। अगर आपका पार्टिसिपेंट कुछ एक चीज़ डिक्लेयर करते हैं कि वो उनकी एज 40 to 45 लेवल में है, स्केल में है, तो आप उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। आप उन्हें 55 to 60 नहीं बना सकते हैं, आप उन्हें 30 to 35 नहीं बना सकते हैं। आपको ऑनेस्ट रहना होगा उस कम्युनिकेशन में, उस इंफॉर्मेशन में। Any type of misleading information as well as representation of primary data findings in a biased way must be avoided. आपको ऐसा लग रहा है कि किसी इंफॉर्मेशन की वजह से
आप बायस हो रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन बायस हो रही है, तो आपको वो अवॉइड करना चाहिए। वो क्वेश्चन, वो क्वेरी जो आपने अपने क्वेश्चनर में बनाया है, अपने रिसर्च में आपने पुट अप किया है, आपको लग रहा है कि इसकी वजह से कुछ मिस इंटरप्रिटेशन होने वाला है, कुछ बातों का मतलब कुछ और हो सकता है, तो आपको वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अब हम लोग रिसर्च फंडामेंटल्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स जो जिसके बतौर सारा रिसर्च चलता है, वो 3 चीजें क्या हैं, राइट? द फर्स्ट एंड ब्रॉडेस्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नियम रिसर्च का है कि आपको ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। जो भी लोग आपके रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप उनको बचा के रखेंगे, उनकी इंफॉर्मेशन बचा के रखेंगे। आपको अगर रिसर्च में कोई हेल्प कर रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है, उन्हें हर तरीके से प्रोटेक्ट करना है। आपकी रिसर्च की वजह से आपके पार्टिसिपेंट पे कोई हार्म नहीं होना चाहिए। एंड द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज to ensure that research is conducted in a way that serves interest of individuals, groups and or society as a whole. आपको ये जताना होगा, ये दिखाना होगा कि आपकी रिसर्च जो है वो या तो किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में आप ले रहे हैं या ग्रुप्स या सोसाइटी एज अ होल। मतलब आपने ऐसा कुछ टॉपिक चूज किया है अपने रिसर्च के लिए जो आगे चल के कुछ अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, जो शायद इंडिविजुअल का इंटरेस्ट होने वाला है या ग्रुप का या पूरी सोसाइटी का इंटरेस्ट होने वाला है। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा सकती हूँ। मान लीजिए इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट है कि हम लोगों को एक टाइम के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है ड्यू टू द सेफ्टी, राइट? आपने उस पर रिसर्च किया कि व्हाट शुड बी द राइट टाइम फॉर अवॉइडिंग टू गो आउटसाइड, तो आप इस पे काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जैसे ये जो भी रिसर्च टॉपिक है, ये प्रॉब्ली बिहार में हम कर सकते हैं ऐसा, पीपल आर नॉट वेरी सेफ देयर। सो अगर वहाँ पे कोई ऐसी रिसर्च होती है, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे आप काम कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा टाइम होना चाहिए, बस अब इसके बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए आपको टू कीप योरसेल्फ सेफ, तो अगर इंडिविजुअल जो पार्टिसिपेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे शुड बी इंश्योर्ड कि ये आपके ही अच्छे के लिए कर रहे हैं। और आप अगर मुझे कुछ भी मेरे क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो मैं वो लीक नहीं करूंगा, अगले पार्टिसिपेंट को वो नहीं बताऊंगा जो आपने मुझे बताया। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव मान के चलना होता है। It should be in the interest of, in the favor of everyone, right? Third objective is to examine specific research activities and projects for the ethical soundness, looking at issues such as management of risk, protection of confidentiality, process of informed consent. जो चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई कि कंसेंट लेना ज़रूरी है, राजीनामा लेना ज़रूरी है पार्टिसिपेंट से। आप उनके परमिशन के बगैर उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। आप उनकी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, कोई मैनेजमेंट रिस्क नहीं होगा, राइट? कोई भी आप किसी एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि भाई आपके बॉस कैसे हैं, और आपको वो ओपनली नहीं बताएंगे कि उनके बॉस कैसे हैं या उनके जो हेड हायरार्कीज हैं वो कैसे हैं। और अगर आपको वो क्वेश्चंस के आंसर ज़रूरी हैं बिकॉज ऑफ योर रिसर्च टॉपिक, तो आपको ये उनको अश्योरेंस देना होगा कि वो चीज़ें ऊपर नहीं जाएंगी या विद द नेम नहीं जाएंगी कि किस नाम के बंदे ने ये इंफॉर्मेशन दी है, बिकॉज दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम टू द पार्टिसिपेंट्स। सो हियर बाय आई एम डन विद द ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करते हैं पॉलिसीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पॉलिसीज का मतलब होता है नियम क्या होते हैं। सबसे पहला नियम है ऑनेस्टी। स्ट्राइव फॉर ऑनेस्टी इन ऑल साइंटिफिक कम्युनिकेशंस। honestly report data, results, methods and procedures and publication status. Do not fabricate, falsify or misinterpret data. Do not deceive colleagues, research sponsors or the public. आपने ऐसा कुछ काम किया जिसमें आपको लग रहा है कि मैं ईमानदारी से नहीं कर पा रहा हूँ, इसमें मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना होगा। जैसे आप को एक रिसर्च करना है कि पर्टिकुलर जगह पे कितने लोगों की सैलरी अबाउट 20,000 है, राइट? आपका रिजल्ट ऐसा बोलता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर लाइक जहाँ पे 10 लोग काम करते हैं और आपको रिसर्च करना है उस जगह की कि यहाँ पे कितने लोग 20,000 प्लस सैलरी लेते हैं और उनके क्या क्या लग्जरीज हैं, और 20,000 लेस जो सैलरी लेते हैं उनके क्या क्या इश्यूज हैं।
तो अब आपका जो डेटा आपने जो कलेक्ट किया वो ये बोलता है कि जो 20,000 लेस जो लोग सैलरी मिलते हैं उनके इश्यूज इन्यूमरेबल हैं, और जो 20,000 प्लस सैलरी लेते हैं उनके भी इश्यूज हैं, पर दे आर काउंटेबल। अब आपको इसमें आपका रिजल्ट नहीं बैठ रहा है, आपका कोई फाइंडिंग्स नहीं आ रहा है, तो यू हैव डिसाइडेड टू मैं इसमें कुछ प्लस माइनस करता हूं, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। आपका रिजल्ट आएगा, फाइंडिंग आएगा, बट दैट विल नॉट बी अ रिफाइंड डेटा, दैट विल नॉट बी अ रिफाइंड रिजल्ट। वो रिफाइंड नहीं रहेगा, राइट, रिकॉग्नाइज नहीं होगा वो। तो यू हैव टू कंसिडर द फैक्टर ऑफ ऑनेस्टी व्हाइल यू प्रोसेस विद द रिसर्च। इसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी। Strive to avoid bias in experimental design, data analysis, data interpretation, peer review, personal decisions, grant writing, expert testimony, and other aspects of research where objectivity is expected or required. Avoid or minimize bias or self-deception. Disclose personal or financial interests that may affect research. आपको उतना ही डिस्क्लोज करना है, उतना ही बताना है जितना रिसर्च मांग रहा है, जितना बताना चाहिए, विदाउट क्रिएटिंग हार्म टू अदर्स। ऑब्जेक्टिविटी पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि आप एनालिसिस जब कर रहे हैं, मतलब आप एनालिसिस मतलब आप अपने रिसर्च में ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो मैंने सबसे इंफॉर्मेशन ली है वो लास्ट मुझे क्या कंक्लूजन दे रही है, दैट इज एनालिसिस। फिर उस एनालिसिस को आप इंटरप्रेट करते हैं कि अब इसका मतलब ये है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक रिसर्च कर रहे हैं जहां पे आपने एक टॉपिक लिया दैट 20,000 प्लस सैलरी अर्निंग, दे आर हैविंग ओनली 3 इश्यूज, लाइक दे आर not having good place to work, they are not having good hours of work, they are having long hours of work. तो इस छोटे मोटे कुछ उनके issues हैं, but the people who are earning less than 20,000 are having so many issues. तो आपका जो ये रिसर्च है, आपको लग रहा है कि मैंने ये रिसर्च किया, ये टॉपिक आएगा और शायद मेरे बॉस मुझे कहेंगे कि भाई तुमने ऐसा रिसर्च किया है, तो कहीं ना कहीं जो 20,000 लेस हैं वो तो बहुत डीमोटिवेट हो जाएंगे और शायद वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे आपको बायस नहीं होना है। You cannot be biased for your boss or for your colleagues or the people, the participants who are earning less than 20,000. आपको वहां पे वही सोचना है जो आपका डेटा बोल रहा है, जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन निकल रहा है। तो ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है रिसर्च की। इसके बाद है इंटीग्रिटी। Keep the promises and agreements, act with sincerity, strive for consistency of thought and action. मतलब जोड़ होना चाहिए, आपने जो कहा वही आपने किया, आपने जो प्रॉमिसेस किए वो आपने निभाए। रिसर्च में हम क्या प्रॉमिस करते हैं? रिसर्च में हम प्रॉमिस करते हैं आपका इंफॉर्मेशन हम इंटैक्ट रखेंगे, आपको गुड रिजल्ट्स देंगे ताकि आपका कुछ फायदा हो। सो वी हैव टू बी इंटीग्रिटी, वी हैव टू मेंटेन इंटीग्रिटी विद आवर फाइंडिंग्स। केयरफुलनेस सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है ये रिसर्च की। अवॉइड केयरलेस एरर्स एंड नेग्लिजेंस। केयरफुली एंड क्रिटिकली एग्जामिन योर वर्क एंड द वर्क ऑफ योर पीयर्स. Keep good records of research activities such as data collection, research design, correspondence with agencies or journals. आप कुछ भी काम करते हैं, इट्स नॉट ओनली रिसर्च, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ केयरफुलनेस, पॉलिसी ऑफ केयरफुलनेस तो हर जगह ही लागू होती है, राइट? आप नेग्लिजेंस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और रिसर्च में तो कतई आप केयरफुलनेस अफोर्ड नहीं कर सकते। You have to be very much sincere, focused for your research. आपको फोकस रहना पड़ेगा। आपने कितना डेटा कलेक्ट किया है, क्या डिजाइन क्या मांग रहा है आपका रिसर्च, डिजाइन क्या होनी चाहिए, करस्पॉन्डेंस एजेंसीज जो हैं, मतलब जहाँ पे जो फंडिंग मिल रही है आपको, या जो जर्नल्स हैं जिसमें आप पब्लिश करने वाले हैं अपना काम, वहां पे बड़ा ध्यान देना होगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। भाई जर्नल तो खूब सारे हैं, बहुत सारे हजारों जर्नल्स हैं, तो ये आपका काम है, आपको ध्यान देना है आपके टॉपिक के लिए सही जर्नल कौन सा है और जर्नल का राइट इम्पैक्ट फैक्टर और रिकॉग्नाइज्ड कितना है। एवरीथिंग ये आपका काम है, एक रिसर्चर का काम होता है और ये रिसर्च एथिक्स में भी इंक्लूड होता है। ओपननेस, share data, result, idea, tools, sources. Be open to criticism and new ideas. अब आपके बॉस ने, आप डर रहे हैं कि मैंने ऐसा रिसर्च किया, आप मेरे बॉस बोलेंगे कि भाई आपने ऐसी रिसर्च की है जिसकी वजह से मेरी कंपनी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप ओपन रहिए, आपका डेटा ओपन रखिए, आप रिजल्ट्स ओपन रखिए, आपके बॉस अगर आपको बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं आपके टॉपिक को, तो आप रेडी रहिए उन्हें आइडिया देने के लिए कि सर वी शुड नॉट create any criticism among the colleagues who are earning less than 20,000, but we can have ideas to involve them for more good things
so that they can earn more than 20,000. तो इससे आपकी कंपनी भी ऊपर जाएगी और जो क्रिटिसिज्म वाला जो माहौल है वो भी खत्म हो जाएगा और लोगों को मोटिवेशन मिलेगा टू अर्न मोर, जिसकी वजह से प्रमोशंस प्रमोट होंगे, जिससे कंपनी तरक्की करेगी. तो आप समझ रहे हैं, यू आर ओपन टू एवरीथिंग. आप क्रिटिसिज्म के लिए भी ओपन है. आपने उसको दबाने की वजह से अपने रिजल्ट्स को बायस नहीं किया. यू आर ओपन टू एवरीथिंग. नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. Honor patents, copyrights, and other forms of intellectual property. Do not use unpublished data, methods, or results without permission. Give proper acknowledgement or credit for all contributions to research. Never plagiarize. बहुत ही important है ये policy research ethics की. आप किसी का काम लेते हैं और उनका काम अपने रिसर्च में इंक्लूड करते हैं और आपने कहीं एक्नॉलेज नहीं किया, कहीं बताया नहीं कि ये किसके कोटेशंस हैं, किसका डेटा है, तो वो प्लेगैरिज्म कहलाता है. वो गलत है. आपका रिसर्च वहीं खत्म हो जाएगा, फेल हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा. तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कदर करनी होगी, चाहे वो कॉपीराइट्स हो, चाहे ऑनर पेटेंट्स हो, या कोई किसी का कोई काम हो, किसी का रिसर्च पेपर हो जो ठीक वैसा ही है जैसा आपको चाहिए और आपने उनका पूरा डेटा ले लिया और उनसे कोई परमिशन नहीं लिया, तो दैट इज नॉट हैपनिंग. वो नहीं होना चाहिए रिसर्च में. कॉन्फिडेंशियलिटी. Protect confidential communications such as papers or grants submitted for publication, personal records, trade or military secrets and patent records. कुछ ऐसे रिसर्च होते हैं जैसे मिलिट्री सीक्रेट्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें ये रिवील करते हैं पर ये अपने ही ग्रुप में कर पाते हैं, बाहर नहीं कर पाते हैं. तो अगर इस पर कहीं रिसर्च हो रही है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये हम पब्लिक ना करें. राइट. यहाँ पे हमें काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर सकते हैं हम अगर यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल नहीं रहे तो. Responsible publication, the very important policy of research ethics. Publish in order to advance research and scholarship, not to advance just your own career. Avoid wasteful and duplicative publication. आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप ऐसी रिसर्च करें, राइट, इसलिए नहीं कि आप सिर्फ रिसर्च, खूब सारा रिसर्च बनाना चाहते हैं, एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं. इट शुड नॉट बी. और दूसरा, आपको एक बार अगर आपने किसी टॉपिक पे रिसर्च किया है और सेम टॉपिक पे आप दोबारा से उसे पब्लिश करना चाहते हैं कि नहीं, एक मैंने जर्नल में किया, वो जर्नल अच्छा नहीं था, अब मुझे दोबारा करना है इस जर्नल में क्योंकि वो लोग मांग रहे हैं मुझसे मेरा पेपर, तो अब आप नहीं दे सकते हैं अपना पेपर क्योंकि आप ऑलरेडी उसे पब्लिश कर चुके हैं. तो यहाँ पे एक अनएथिकल कोड आ जाता है अगर हम ऐसा कुछ करते हैं. Responsible mentoring. Help to educate, mentor and advise students. Promote their welfare and allow them to make their own decisions. Research ethics हमें कहते हैं कि हमें ऐसा रिसर्च करना चाहिए जहाँ पे हम सबकी हेल्प कर पाएं, चाहे वो एजुकेटर्स हो, मेंटर्स हो, स्टूडेंट्स हो. ठीक है, ऐसा रिसर्च टॉपिक होना चाहिए, ऐसे रिसर्च डेटा होना चाहिए जो आगे लोगों की भलाई ही करे, बेनिफिट्स ही दे, फायदा ही करे, कहीं ना कहीं अपडेट ही होना चाहिए नॉलेज. राइट. दैट इज रिस्पॉन्सिबल मेंटरिंग. Social responsibility. Strive to promote social good and prevent to mitigate social harms through research, public education and advocacy. बहुत ही कॉमन सी चीज़ है. इट्स नहीं, रिसर्च में ही नहीं, हर जगह ही ये एप्लीकेबल होती है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हमें सारे सोसाइटी की भलाई, जिसमें कोई हार्म नहीं होना चाहिए, जिसमें कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होने चाहिए, कोई रिलीजन, कोई कल्चर, कहीं भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए आपके रिसर्च की वजह से. ये हमें बहुत कंसिडर करना होता है अपने रिसर्च में. नॉन डिस्क्रिमिनेशन. Avoid discrimination against colleagues or students on the basis of sex, race, ethnicity or other factors not related to scientific competence and integrity. मुझे लगता है कि ये पॉलिसी इन्होंने जोड़ी हुई है रिसर्च एथिक्स में, लेकिन जब कोई इंसान रिसर्च करता है तो इतना मैच्योर हो जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन वाला फैक्टर वहाँ इन्वॉल्व नहीं होता. फिर भी सेफ गार्ड के लिए पॉलिसी रखी गई है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं होना होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, मतलब लड़का लड़की है, या रेस, उनकी जाति क्या है, एथनिसिटी क्या है, उनका वजूद किससे है, एंड मेनी अदर थिंग्स. राइट. ये रिसेंट ट्रेंड्स में ऐसा नहीं पाया जाता, बट स्टिल एक पॉलिसी है, एक सेफ गार्ड पॉलिसी है जो रखी गई है रिसर्च फंडामेंटल्स को मेंटेन करने की. कॉम्पिटेंस. मेंटेन एंड इम्प्रूव योर ओन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड एक्सपर्टीज थ्रू लाइफ लॉन्ग एजुकेशन एंड लर्निंग.
take steps to promote competence in science as a whole. रिसर्च एथिक हमें ये समझाता है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हम अपने आप को खुद को चैलेंज करते हैं, हम खुद को टॉपिक देखकर ये चैलेंज करते हैं हम इसमें कितना काम कर सकते हैं, क्योंकि काम ऑलरेडी हुआ होता है, हम इसके आगे अपडेट क्या दे रहे हैं. सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ चैलेंज थ्रू दैट रिसर्च टॉपिक. ये भी माना जाता है कि आप जब खुद को चैलेंज दे रहे हैं और जब आप फाइंडिंग्स पे आते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस टॉपिक के, उस फील्ड के जॉनर में आ जाते हैं, उस एक्सपर्टीज में आ जाते हैं. दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर रिसर्चर. और आप जब स्टेप्स लेते हैं, आप जब रिसर्च करते हैं, रिसर्च में काफ़ी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. पहले आपको टॉपिक लेना होता है, फिर आपको उसको सिचुएशंस देने होते हैं, हाइपोथेसिस देना होता है. तो ये जो भी स्टेप्स होते हैं आपको वो एज अ होल लेना है कि भाई ये सब मेरा जो भी काम है ये कहीं भी किसी के लिए हार्म नहीं हो रहा, हर जगह प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ही हो रहा है. ये आपको अश्योर करना होता है. लीगैलिटी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी है ये. नो एंड ओबे रेलेवेंट लॉज एंड इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज. आप रिसर्च करने से पहले किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ कौन सा डेटा लगा रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे कौन सी लीगैलिटीज़ हो सकती हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए. आप ऐसा ना हो कि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और कहीं ना कहीं आप किसी गवर्नमेंट पॉलिसी को तोड़ रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि आप कौन से लॉ के खिलाफ जा रहे हैं. तो यू शुड नो अबाउट द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ योर रिसर्च. आपको ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, वो बहुत ज़रूरी है. एनिमल केयर, द अटमोस्ट पॉलिसी ऑफ रिसर्च एथिक्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. ये खासकर साइंस में ये पॉलिसी अपनाई जाती है. क्या होता है, आप कोई रिसर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग फ्रॉक्स पे, रैट्स पे और जानवरों पे रिसर्च करते हैं, तो हम ये नहीं देखते हैं कि कितनी जानें गई, बस हम तो रिसर्च कर रहे हैं, हमें फाइंडिंग निकालनी है. वी शुड नॉट डू दिस. शो प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर एनिमल्स व्हेन यूजिंग देम इन रिसर्च. डू नॉट कंडक्ट अननेसेसरी और पूरली डिजाइन एनिमल एक्सपेरिमेंट्स. आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा माइन्यूट होना पड़ता है आपकी रिसर्च में जब आप एनिमल्स को कंसिडर करते हैं अपनी रिसर्च में, क्योंकि वो बेजुबान हैं. दे आर हेल्पलेस क्रिएचर्स, दे कैन नॉट सेव देमसेल्व्स. बट हम लोग अगर ऐसी पॉलिसी बनाते हैं और जब आप साइंस के जॉनर में ऐसी कोई रिसर्च करते हैं तो ये भी आपसे पूछा जाता है आपने ये फाइंडिंग लाने के लिए कितने एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो वो भी मैटर करता है वहाँ पे. Human subjects protection. When conducting research on human subjects, minimize harms and risks and maximize benefits. ये बहुत रेपिटेटिव है पॉलिसी. हर पॉलिसी कहीं ना कहीं यही शैडो दिखा रही है कि हमें मिनिमाइज करने हैं नुकसान को, जो सामने जो सोसाइटी है उसको कोई हार्म नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमाइज होना चाहिए सिर्फ फायदे. नॉलेज अपडेशन होना चाहिए, आपका जो सोसाइटी का लेवल है वो प्रमोट होना चाहिए. रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमी. Take special precautions with vulnerable populations and strive to distribute the benefits and burdens of research fairly. आपको ऐसा रिसर्च फाइंडिंग निकालना चाहिए कि वो सबके लिए फ़ायदेमंद हो. आपने जो प्रॉपर एक कोर टॉपिक लिया है सिर्फ उसी के लिए नहीं, पर उससे जो रेलेवेंट एस्पेक्ट्स हैं उन्हें भी फ़ायदा होना चाहिए.